नमस्कार फ्रेंड्स, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स डेवलपिंग इंडिया से डेवलप इंडिया की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर युवा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेंड कर रही है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। Because I have nothing to lose, I have something to gain. If we lead and make the Indo-American Chamber of Commerce facilitate, and the words you've used is correct, how do we facilitate and make you reach places that you never thought you'll ever go? And we have visionaries and dreamers here, and I really congratulate the fact is just one word to them and said that what are we doing? Yeah, that's not Indo-American Chamber of Commerce. What are we doing? Because if I want you to join, and I can see people here who will join us, but you will join us because you know there is something in it for you. There are 40 different things that we do throughout the year. There are programs that you go for, you have to only get involved. But for the first is, like we always say in marketing, get to know us. And this is the way you will get to know us and we will get to know you. So congratulations, and I'm really proud that for the first time I am seeing movement in this organization. Thank you. Like Tata Motors is back on the job and we are again back in that same line. But somewhere we are now in a position that we need to, break this mindset. In around, I think May 2018 is when Tata Motors touched their Jamshedpur plant, touched their peak of around 16,000 vehicles. And now we see them not cross 10,000, 11,000 at their max. We do have capacities, we do have skill sets over the years. We have gathered a lot of capabilities to, address to markets outside. But we have somehow, as Sanjay ji just, when I was talking, he said we need to break that mindset, and that's why we probably have him also over here. He'll probably, share his story. We did what we are now proposing. He did what 25 years back. And so the main question that when we think about exports, and when you ask yourself, or when you will talk to anybody who's already into export, are we export ready? Is our unit mindset of international business and the risks and other things associated with it? So with that, my first question, Sanjay, is that since you started off as a supplier to Tata Motors, because you were in that room, in that meeting, what triggered your decision to get into exports, and what were the risks and rewards of your decision? So, anybody who is asked something like this, I don't know actually where to start. Because I think part of this emanated from the fact that I think I had a gift of God, not in terms of skills, but in terms of what I wanted to do in life. And at a very, very young age, means 15 years old, I was sure I was going to be an इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेशन प्रोग्राम बाई IACC, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि खासकर हमारे इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप बना रहे हैं? एक तो है कि अभी जमशेदपुर में हमने जो IACC का जो चैप्टर इनिशिएट किया है, जो डेस्क, इसमें एक बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। आप जैसे जानते हैं कि आदिपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1400 से 1500 इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत कैपेबल हैं, बहुत एडवांस है इंडस्ट्री में। तो इस तहत हम लोग ये प्रमोशन करने का कोशिश कर रहे हैं, एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं विथ ऑल द बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस दैट इज़ कमिंग इन। सो विद दिस फैसिलिटी एंड विद दिस इनिशिएशन, ये हमारा भी कंटिन्यूअल एक प्रोग्राम रहेगा, आइदर थ्रू वेबिनार और वेदर थ्रू फिजिकल मीटिंग्स, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी जानकार हैं। हम लोग पहले अपने मेंबर्स को एजुकेट करेंगे, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया को एजुकेट करेंगे और ये चीज़ उनको प्रमोट करेंगे कि आज के दिन में अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड इंडिया, मेक इन इंडिया करके एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हमारा पॉसिबिलिटीज़ है और रहेगा आगे भी। जी सर, क्या सजेशन होगा खास करके जमशेदपुर या न्यू टैरिफ जो है US गवर्नमेंट का 2025 के लिए,
वो कितना इम्पैक्ट करेगा अपने इकोनॉमी पर? देखिए, जहाँ तक टैरिफ का सवाल है, आई थिंक अभी भी यूएस ने जो टैरिफ लगाया है वो इम्पोज किया है, दैट इज़ कंपेरेटिवली लेसर एज कम्पेयर टू मेनी अदर कंट्रीज, बट इवेंचुअली अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट से और भी जो काउंटर टैरिफ्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली रहेगा. बट with our cost of infrastructure, with our cost of production and manufacturing, I am sure these tariffs over a period of time वो हमारा इक्वेट हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सर लास्ट, डेवलप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया, वी आर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, एंड आई थिंक इंडिया का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का. अभी पूरी दुनिया अभी इंडिया को देख रही है. आप चाइना +1 का कॉन्सेप्ट ले लें, लो वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लें, या पॉसिबिलिटीज़ ले लें, या हमारा आज का दिन में जो सबसे वीक एरिया था कि हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, बट सबसे ज़्यादा बड़ा बिगेस्ट एडवांटेज अभी हमारे लिए है कि टुडे द बिगेस्ट मार्केट, बिगेस्ट कंज्यूमर इज़ इंडिया. सो जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है पोटेंशियल बहुत है, जहाँ कंज्यूमर का सवाल है वो पोटेंशियल बहुत है. सो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years I think India will be on the top, and in the next 5 years India will become one of the top 3 countries in the world, economies in the world. Thank you, sir. Thank you. Developing to develop India is a policy, and you are going to discuss about balance sheet, very important and very critical topic. क्या कहना चाहेंगे आप न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए बैलेंस शीट की मैनेजमेंट और उसको स्ट्रेंथन होना, क्या कहते हैं आप? एक बुनियाद है काम करने की. जी. अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी बैलेंस शीट आप स्ट्रांग नहीं बना सकते, दैट मीन्स आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, एंड ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल. आप कैसे ग्रो कराएंगे? आपको बैंक कर्जा नहीं देगा, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, और कोई भी जो आपको ऑर्डर देता है वो आपको आकर बोलेगा ये वीक कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं. They want to deal with a strong company. Therefore, balance sheet is a founding block of a business if you are looking for growth. Yeah. And you should always aim to make your company strong, and that is through a strong balance sheet. Yeah. Next, nourishment of एम्प्लॉयर. आपने बहुत बड़ी बात कही कि नरिशमेंट अपने खास करके जो काम करते हैं साथ में कंपनीज या अपने आपके टुगेदरेंस, बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. क्या कहेंगे आप, अभी कितनी ज़रूरत है खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए? सर मैं दो बातें कहूँगा. एक है कि हमारे लेबर लॉज बहुत आर्केक हैं, इनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, पर ये एक डिफरेंट मुद्दा हो जाता है. एज फार एज एम्प्लॉयर्स आर कंसर्न्ड, आई फील वेरी स्ट्रांगली, और मैंने ये फॉलो भी किया है कि अपने एम्प्लॉयज़ को आपको एक कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो जहाँ काम कर रहे हैं दैट कंपनी केयर्स फॉर यू, एंड दैट कंपनी वांट्स यू टू इम्प्रूव, एंड दैट कंपनी इज़ विलिंग टू ट्रेन यू. एंड जो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कोई अजूबा नहीं है, वो वही एक्सपेक्ट करते हैं जो दुनिया भर में एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी लेबर फोर्स से ऑन अ पर्टिकुलर मशीन. पर अगर आप ये एक सत्य के बुनियाद में बात कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर फॉर्चुनेट दैट सामने वाला समझ जाए, आई थिंक इट्स अ ग्रेट विन विन सिचुएशन. जी. युवा एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जो अपने कस्टमर के साथ कैसे ईमानदारी बरते और खासकर किन पहलुओं पे ध्यान? मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कस्टमर आपके पास क्यों आता है. कस्टमर आपके पास आता है कि जो वो प्रोडक्ट आपसे खरीदता है वो एक रिलायबल प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको सही समय में मिलना चाहिए और सही मात्रा में मिलना चाहिए. सो अगर आप इसका निचोड़ देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑनेस्टी. ही वॉन्ट्स यू टू बी ऑनेस्ट विद हिम, एंड उसका डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्ट ये है कि अगर आप बोलते हैं कि कल इतना मटेरियल इतनी संख्या में मिलेगा, वो उतना आए. अगर वो बोले कि आप इस क्वालिटी का देंगे, वो इस क्वालिटी का आए, क्योंकि कल जब वो फिट करने लग जाए और वो फिट ना हो तो उसकी तो लाइन बंद हो जाएगी ना. एंड जो आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप खरे उतरे, ये हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. जी. हम यूज़ करते हैं वर्ड हम ट्राई करेंगे. हमको ट्राई नहीं करना है, इसलिए नहीं आपको ऑर्डर मिला, आपको करना है. आई ऑलवेज टेल माई पीपल अंडर कमिट एंड ओवर परफॉर्म. चलता है नहीं चलेगा, आपने जैसे कहा है नहीं चलेगा. सर मेरी काफ़ी बेहतर टैगलाइन है. लास्ट में सर कहना चाहेंगे कि खासकर देखा जाए 2025 के लिए यूएस न्यू टैरिफ
ऐलान हुआ है और ये भारत के इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है और भारत का खासकर जो जिस इंडस्ट्री को आप डील कर रहे हैं उसका क्या फ्यूचर है? सर, आज की डेट पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, और मैं अपने इतने छोटे से लेवल में प्रेडिक्ट करूं, ये मेरे को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। पर जो आज की डेट पे हमको दिख रहा है वो ये है कि इवेंचुअली जो टैरिफ्स हम पर लगेंगे विल बी वेरी फेवरेबल एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। दुनिया इधर आना चाहती है क्योंकि वी आर अ डिमांड लेड इकोनॉमी। अगर ये सत्य है तो इट विल गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू आल्सो एक्सपोर्ट। सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टैरिफ्स। इट इज़ क्रिएटिंग अ डिसरप्शन, देयर इज़ नो डाउट, पर छोटे समय में कभी कभी तो पेन लेना पड़ता है। ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू वेरी मच। सर। एम्पावरिंग जमशेदपुर, जब चेन्नई में उसको मिलेगा एक रोड मैप आपने दिया आज खासकर युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो बेस्ट था। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू एक्सपोर्ट जो आपने डील किया है, क्या कहना चाहेंगे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मेरा मानना है कि जमशेदपुर इज़ इंडियाज़ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्बिशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इट इज़ अ टॉर्च बेरर फॉर विकसित भारत एट 2047। यहाँ पे इतना पोटेंशियल है जो मेरे हिसाब से अनटैप्ड है, और अगर कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं और यहाँ के MSMEs को इंटरनेशनल कॉरिडोर के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ देते हैं थ्रू चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, थ्रू ISCC, देन आई एम श्योर कि ये तो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए। और जो एक्सपोर्ट का खास कर पोटेंशियल है उसके लिए कुछ चीज़ों में हमें तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने जो समझा है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी लो है, इकोनॉमिकल है। हमारे पास जो पोर्ट्स है वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा जो एक माइंडसेट है, एक परिवर्तन जो लाना ज़रूरी होता है एक्सपोर्ट रेडीनेस के लिए, बस उसको हमें टच करना है। और यहाँ के जो MSMEs है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना नाम कर सकते हैं, इतना इनके पास पोटेंशियल है। सर, नेक्स्ट कि चैलेंजेस ऑफ द इंडियन बिजनेस खासकर कहा जाए तो US टैरिफ के बाद जो नई 2025 के बाद है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सो ये टैरिफ का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लेवी किया हुआ है उसमें भारत पे जो टैरिफ है 26%, वो कंपेयर टू अदर एशियन कंट्रीज़ कम ही है। तो इसके कारण मेरा तो ये मानना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ये नया कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए लेकर आएगा, क्योंकि बाहर एशिया की दूसरी कंट्रीज़ है वो अभी इंडिया में आके जॉइंट वेंचर्स या तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, क्योंकि वो वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनसे कंट्री से करेंगे तो काफ़ी टैरिफ उनके लिए हाई है। तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा मानना है। और इंडियन गवर्नमेंट US गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका आर इनएविटेबल पार्टनर्स इन दिस ग्लोबल एरा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम हुआ खासकर युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए और एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी एक बेंचमार्क है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर, जो आपने आज एक कार्यक्रम को लीड किया और लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी दी? मैं इसके बारे में मेढक, ये हिंदी में मेढक बोलते हैं फॉर फ्रॉग, मेढक जो कुआं में होता है उसका कहानी बताना चाहता हूँ। हम लोग जमशेदपुर में रह के बहुत कंफर्टेबल हैं कि हम लोग को सब चीज़ मिलता है, टाटा स्टील को सप्लाई करते हैं, लेकिन इसके बाहर में वो कुआं से हट जाओ, ऊपर जाओ, देखें दुनिया बहुत बड़ा है और बहुत चीज़ कर सकते हैं। और इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स लोकल चेंबर ऑफ कॉमर्स के जैसे नहीं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो सिर्फ भारत के लिए है। ये है बायलैटरल एग्रीमेंट USA और इंडिया, और हम लोग का कोशिश है कि आके मत करो, लेकिन कम से कम दो चीज़ हो सकता, कुछ भी नहीं होने से दोस्ती बनाएंगे और उससे दोस्ती से कुछ बिजनेस भी निकल सकते हो। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक फ्रेज़ है, फर्स्ट अ फ्रेंड एंड फेलोशिप, सेकंड बिजनेस।
यदि मैं आपको में भरोसा, पहले दोस्ती होगा तब भरोसा होगा तब धंधा होगा। बाकी सब ये भी जो तब हम लोग सीखने पड़ता है कि कैसा एक्सपोर्ट करना है। रूल्स रेगुलेशन सब जगह में होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग आपको बताएंगे। और जिसने आज आए था वो आपको बोल रहे ये सोना आदमी है, दिस मिस्टर सौरभ, वो सब चीज़ बताएंगे, आपका हाथ पकड़ के दूसरा जगह बना देंगे। सो प्लीज़ मेरा एक ही मैसेज टू द इंडस्ट्री एंड जमशेदपुर इज़ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनरली दूसरा लोग बोलता है कि हमको क्या मिलेगा, हम लोग बोल रहे हैं मैं आपको देंगे, और यदि आप मेंबर बनना चाहते बनिए, लेकिन किसी रुकावट नहीं है कि आप हम लोग का जितना लोग बाग प्रोग्राम्स है आप जा सकते हैं उसके लिए विदाउट बिकमिंग अ मेंबर। लेकिन हम लोग के रूल इज़ वी वांट टू इनकरेज इंडो अमेरिकन बिजनेस, इसलिए कर सकते हैं। थैंक यू।